Hello friends, this is Navneet and today I have brought very important MCQs for polity, and these are 50 most expected high level polity questions generally related to the Constitution of India, and that are very important for the upcoming SSC CGL examination. And I have also tried to include maximum questions that have been asked from UPSC in the last year examinations, and I have also included the recent 4 to 5 questions which have been asked from the polity in UPSC prelims. So I hope the video will definitely benefit you in the SSC examination, so please don't take chance to miss it. Just hold on to your screens for next 15 to 20 minutes. So let's start with the MCQs. First is, the speaker can ask a member of the house to stop speaking and let another member speak. तो ये आपने जनरली पार्लियामेंट में देखा ही होगा. तो इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग द फ्लोर, इंटरपेलेशन, यील्डिंग द फ्लोर और डेकोरम. तो इसको बोलते हैं यील्डिंग द फ्लोर. नेक्स्ट इज, द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय. जो 9th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड हुआ था. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है. Next is, which one of the following bill must be passed by each house of the parliament separately by a special majority. तो हर एक जो वर्ड है उसको ध्यान से सुनना और ध्यान से देखो, इसको कंसंट्रेट करो. एंड द आंसर इज ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है दैट इज मैंडेटरी टू बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट separately by a special majority. So the option is D. Next is, the Montague-Chelmsford report formed on the basis of Indian Councils Act 1909, Government of India Act 1935, Government of India Act 1919 and the the Indian Independence Act 1947. तो आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है. Next is, the corporation tax is levied and appropriated by the states, is levied by the union and appropriated by the states, is levied by the union and shared by the union and the states, is levied by the union and belongs to it exclusively. तो जो कॉरपोरेशन टैक्स होता है जनरली, जो कंपनी से टैक्स जनरेट करती है गवर्नमेंट, तो दैट इज जनरली लेविड बाय द सेंटर, दैट इज यूनियन, एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू इट एक्सक्लूसिवली वो यूनियन को ही बिलोंग करता है. Next is, which of the following taxes is or are levied by the union and collected and appropriated by the states? तो वो है स्टैम्प ड्यूटीज. ठीक है, स्टैम्प ड्यूटीज आर बोथ लेविड बाय यूनियन and they are collected and appropriated by the states. Next is, directive principles of the state policy has been borrowed from आयरलैंड. तो ये बेसिकली मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसमें आपको जितने भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो की हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए हैं, फेडरल जो है रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू जो है, फेडरल स्ट्रक्चर है कहाँ से बोरो किया है, ठीक है. तो ये सब आपको जो है थोड़े से ही हैं, ईजी हैं, तो आपको याद रखनी है. नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन. दोनों में चीज़ में दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कॉमन क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, ड्यूअल जुडिशरी, 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आंसर इज फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू interpret the constitution is common in both Indian Federation as well as American Federation. Next is, the Dinesh Goswami committee was concerned with denationalization of banks, electoral reforms. That is very important question, I must say. तो दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है that is related to the electoral reform. So the answer is B. Next is, which one of the following determines that the Indian Constitution is federal? तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का किससे पता चलता है? ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे आपको पता है जीएसटी भी पास हुआ है, तो वो बेसिकली ये एक फेडरल कॉन्सेप्ट इंडिया में है, यूनाइटेडली कंसेंसस से पास हुआ है सेंटर और स्टेट की तरफ से. तो इसलिए जो है दिस क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज, in the interim government formed in 1946, the vice president of the executive council was Jawaharlal Nehru. तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो PIL हम फाइल करते हैं कोर्ट में, दैट वाज एक्चुअली ओरिजिनेटेड इन
the United States? This is also very important question. Next is Panchayat Raj was first introduced in India in October 1959 in Rajasthan. Next is which of the following schedules of the Constitution of India contains provisions regarding anti-defection law? तो ये बेसिकली 10th शेड्यूल में ऐड किया गया था, इसकी प्रोविजंस जो है एंटी डिफेक्शन लॉ की. एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी आपको पता है नागालैंड में भी जो क्राइसिस चला था और रिसेंटली बिहार में अभी 2-3 दिन पहले ही. तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ एंड इट हैज़ बीन एडेड टू द 10th शेड्यूल. प्रोविजंस आर एडेड टू द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश्ड ऑफिशियली एवरी ईयर बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज. A with the consent of all the states, B with the consent of majority of states, C with the consent of states concerned and D without the consent of any state. तो जो इंटरनेशनल ट्रीटीज के रिगार्डिंग उनको इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग कोई भी जो लॉ है वो पार्लियामेंट बना सकती है एंड इट इज़ विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट. तो इसमें कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश ही नहीं है. नेक्स्ट इज The Supreme Court of India tenders advice to President on a matter of law or fact. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जामिनेशंस में बहुत बार, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को वो इस फैक्ट पे देता है ओनली इफ़ ही सीक्स सच एडवाइस. अगर प्रेसिडेंट को ज़रूरत है तभी देता है. ठीक है, तो द आंसर इज़ बी. Next is the salaries and allowances of the judges of High Court are charged to the Consolidated Fund of India. This is very simple question. इसको भूलना नहीं है, याद रखना है. Next is the term of Lok Sabha cannot be extended under any circumstances. B can be extended by 6 months at a time. C can be extended by 1 year at a time during the proclamation of emergency. D कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 2 years एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी. तो जो टर्म होती है लोकसभा की दैट इज यूजली कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी. सो द आंसर इज सी. 20 द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डील्स विद द it simply deals with free and compulsory education for all children between age of 6 and 14 years. तो ये आपको याद रखना है. This is very important constitutional amendment. Again I repeat, the 93rd constitutional amendment bills deal with the free and compulsory education for all children between the age of 6 and 14 years. Next is under which article of the Indian Constitution did the President give his assent to the ordinance? तो again the question is very very important. इसका आंसर है पहले आपको बता देती हूँ. दैट इज़ आर्टिकल 123 के अंडर जो होता है प्रेसिडेंट जो होता है वो अपनी किसी भी ऑर्डिनेंस को असेंट देता है. ऑर्डिनेंस बेसिकली क्या होता है, जिस जब तक ऑर्डिनेंस कोई भी है वो एक्ट में नहीं बदल जाता तो उसकी जो कंसेंट है वो प्रेसिडेंट को देनी पड़ती है. ठीक है, परमिशन सॉर्ट ऑफ, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. तो ये अगेन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपको पता होगा मैंने थोड़े 2 दिन पहले ही डिस्कशन भी की थी अपने करंट अफेयर्स में जो उसका एनिमी प्रॉपर्टी रिलेटेड जो एक्ट आया था इंडिया का 1968. तो उसमें जो बार बार जो ऑर्डिनेंस था वो प्रेसिडेंट के बिफोर इंट्रोड्यूस हुआ था एंड 5 times जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है. तो अगेन द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Next is the resolution for removing the Vice President of India can be moved in only in Rajya Sabha. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को लोकसभा से कुछ भी लेना देना नहीं है. तो दैट इज सिंपली इंट्रोड्यूस्ड इन राज्य सभा ओनली. नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर द लोकसभा स्पीकर. तो इट्स अ फैक्ट, तो आपको याद रखना है. G.S. ढिल्लों, बालीराम भगत, हुकुम सिंह was once the लोकसभा स्पीकर बट KVK सुंदरम जो है that was never the Lok Sabha speaker. तो आपको याद रखना है. Next is which portfolio was held by Dr. Rajinder Prasad in the interim government formed in 1946. तो उनके पास जो portfolio था that was food and agriculture. Next is under which 5-year plan was the emergency clamped, new election took place and the Janata Party was elected. तो answer is 5th 5-year plan. Next is
इफ़ द पंचायत इज़ डिज़ोल्व इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शंस हो जानी चाहिए अगर पंचायत जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है, इट्स अ फैक्ट। नेक्स्ट इज the instrument of instructions contained in the Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India by the डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑब्वियसली अगर स्टेट चाहे तो वो इंस्ट्रक्शंस को अपने स्टेट में जो है लॉ की फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर सकती है, एक्ट की फॉर्म में ला सकती है, तो इसलिए उनको बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। Next is, in the Parliament of India, the purpose of an adjournment motion is to allow a discussion on a definite matter of urgent public importance. So the answer is A. तो ये भी अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अभी आपको पता ही है पार्लियामेंट में जो हमारे स्पीकर हैं उन्होंने 5 और 6 जो कांग्रेस के बंदे थे उनको सस्पेंड कर दिया था बिकॉज वो एडजॉर्नमेंट मोशन चाहते थे, वो जो गौ स्लैटर के ऊपर जो गौ रक्षक की जो भी डिस्कशन चल रही थी उसके ऊपर, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट? The answer is Committee on Public Account is the largest committee of the Parliament. Next is, the motion of no confidence can be introduced only in Lok Sabha. तो ये आपको याद रखना है, जो no confidence motion होती है that is only be introduced in the Lok Sabha. Next is, the speaker can ask a member of the house to stop speaking and let another member speak. The phenomenon is called, sorry मैंने यहाँ पे आंसर गलत लिख दिया, तो इसका आंसर बेसिकली है yielding the floor and I have somewhat repeated the question for the second time, so sorry for that. Next is, who is regarded as the father of all India services? तो सरदार पटेल जी जो हैं उनको हम फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज बोलते हैं, जो ये आईएएस और आईपीएस की सर्विसेज होती हैं, आईएफएस की, तो ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज. Next is, money bill can be introduced in the state legislature only on the recommendations of governor, ठीक है, तो state legislature की बात हो रही है तो obviously governor की recommendation होगी. Next is, the term cabinet is mentioned in which of the following articles of the Constitution? Article 71, 61, 352 not mentioned in the Constitution. पहले तो जो कैबिनेट वर्ड था that was not mentioned in the Constitution, but जो आर्टिकल 352 है उसके अंडर बाय सेक्शन बाय 44th अमेंडमेंट जो है वो कैबिनेट वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये आपको याद रखना है, इसको आंसर को गलत मत करना. Next is, the first Lokpal bill was introduced in Parliament in 1968. Next is, the need of separate parliamentary committee on public undertakings was first visualized by Ashok Mehta, G.V. Mavlankar, Lanka Sundaram एंड कृष्ण मैनन कमेटी. तो जो सेपरेट पार्लियामेंट कमेटी है पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए, उसको सबसे पहले जो है वो लंका सुंदरम जी का आइडिया था. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमेटीज आर नॉट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि जनरली सारी कमेटीज़ जो हैं दैट आर चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट एंड only committee on parliamentary affairs, though the committee is very important but still it is not chaired by the prime minister. Next is, fundamental duties were incorporated in the constitution on the recommendations of Shah committee, Ashok Mehta committee, Swan Singh committee, Krishna Menon committee. So again the question is very important. So जो fundamental duties हैं that are basically incorporated on the recommendation of Swan Singh committee, so the answer is C. Next is, no demand for grant is to be made except on the recommendation of president. Obviously कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट जो है फॉर ग्रांट वो नहीं हो सकती है एक्सेप्ट फॉर ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ प्रेसिडेंट. नेक्स्ट इज, अगेन द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड टू द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट. नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन? तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया था दैट वाज गिवन इन रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो आंसर इज बी. Next is, the erstwhile planning commission was described as the economic cabinet by Ashok Chanda. तो ये आपको याद रखना है सिंपली, the planning commission जो था that was described as economic cabinet by Ashok Chanda, so the option is D.
Next is the institution of Lok Yukta was created for the first time by the state of Maharashtra. तो ये भी आपको याद रखना है, दैट इज रिलेटेड टू द लोकपाल बिल, तो लोक युक्ता उसके लिए अपॉइंट होते हैं. तो दैट वाज फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सो द ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट इज which of the following is not a formally prescribed device available to the members of parliament. तो इसमें क्वेश्चन आर भी अवेलेबल होता है, हाफ आवर डिस्कशन भी अवेलेबल होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी अवेलेबल होती है, बट जीरो आवर डिस्कशन जो है वो दैट इज़ नॉट अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो अभी जो वो 5-6 मेंबर्स जो कांग्रेस के उन्होंने सस्पेंड किए थे हमारे स्पीकर मैम ने, तो वो भी बेसिकली जीरो आवर में भी वो कंटिन्यू कर रहे थे अपनी डिस्कशन. तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमेटी एक्सक्लूसिवली ऑफ द लोअर हाउस. तो वो है एस्टिमेट्स कमेटी, दैट इज रिलेटेड एक्सक्लूसिवली टू द लोअर हाउस. नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी. ये क्वेश्चन जो है इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था. सो द आंसर इज ए, दैट इज द इंटेलिजेंस एंड करेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी men and women. Next is, again this question was asked in the UPSC prelims 2017. The main advantage of parliamentary form of governments is that the executive and legislature work independently. No. It provides efficiency to the policy. No. That the executive remains responsible to the legislature. So C is the correct option. That is the main advantage of parliamentary form of government, that the executive always remain responsible to the legislature. So the correct option is C. Next is again this question was asked in the UPSC prelims 2017, and the question is very easy. The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following. That is the preamble. ठीक है, माइंड जो है उनका वहीं से रिफ्लेक्ट होता है. जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया पढ़ा है ना प्रेम्बल, तो उसमें रिफ्लेक्ट होता है माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो द ऑप्शन इज ए, दैट इज द प्रेम्बल. Next is the Parliament of India exercises control over the functions of the Council of Ministers through A. adjournment motion, B. question hour, C. supplementary question, and D. all the above. So all the above are correct. And last question, sorry, I have only included 49 questions. So I hope this will definitely benefit to you, and all the best for your examination. And please don't forget to subscribe to Fateh Educom. Thank you very much.